So let's go for the uh, one minute summary. कोई बता सकता है मुझे? अच्छा चलो ये बताओ कि व्हाट इज फ्रेंच? फ्रेंच के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या है? व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फ्रेंच? हेलो, please answer the question. Otherwise, it will be very difficult that I think I will not understand. Yes, 10 raised to 5. Correct. And what about the clerk, degree clerk? It is 70,000. Good. And ppm, we know ppm is on the screen, that is 10 raised to 6. Oh, okay, fine. Conversions, I hope you are all comfortable with the conversions, because that type of questions will be definitely there in your exams, right? So, सब लोगों को कन्वर्जन एकदम क्लियर है? पीपीएम टू फ्रेंच, फ्रेंच टू क्लर्क, क्लर्क टू पीपीएम, पीपीएम टू clerk, any type of conversion, you should be comfortable now, right? Okay, so let us start with the equivalency. Already, this point we have gone through, but the formula we have not seen, right? Basically, degree of hardness, it is expressed in the terms of calcium carbonate. It means what? कैल्शियम कार्बोनेट टर्म्स में क्या होता है? मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी कंपाउंड का हार्डनेस है तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट के क्या बोलते हैं टर्म्स में, राइट? उसको बताया जाता है कि इसकी हार्डनेस कितनी है, ये पानी में हार्डनेस कितनी है, हाउ मच हार्डनेस इज देयर इन दिस वाटर. So I will say it is having 130 ppm hardness equivalent to calcium carbonate. Now, what is the reason behind this? By using this, calcium carbonate component or this equivalent, the reason is, first reason, there are three reasons. One is the molecular mass is 100, so definitely your calculations will become easy. Not only that, remember, second reason is it is the most, calcium carbonate is the most, you know, insoluble salt among all the salts which are imparting the hardness. And the third one is the most common substance in hardness. ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी. सो ये चीज जो है, मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं, वो आपको 1 या 2 मार्क में पूछे जाते हैं कि 3 पॉइंट लिखिए. कभी कभी 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं. एक एक पॉइंट का एक एक मार्क है, या 1.5 मार्क में भी आधे आधे मार्क का एक एक पूछ सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द मार्किंग सिस्टम, राइट? एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्क्स एज पर द चैप्टर वेटेज, राइट? सो molecular mass is 100. Calcium carbonate is the most insoluble salt which can be precipitated in water treatment. मतलब कैल्शियम की कोई भी हार्डनेस है उसको हम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. We can convert very easily in carbonate. Why? Because carbonate को प्रेसिपिटेट करना, राइट, उसका बहुत इजी है, क्योंकि उसकी KSP, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, बहुत कम है. ठीक है. और तीसरा है मोस्ट कॉमन सब्सटेंस इन द हार्डनेस, मतलब कि मैक्सिमम हार्डनेस आपकी बिकॉज ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट्स होगी. एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपके आपके पानी में 100 ppm का हार्डनेस है, राइट, टोटल, then again that will be out of this 100 ppm, your hardness, right, your hardness due to the calcium will be more than 90%, and remaining 8 to 10% will be due to the magnesium or other salts, right? This is the reason why it is taken, it has been taken for calcium carbonate equivalent. Now calcium carbonate equivalent आपको समझना है. कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट आपका जो है वो आपको प्रॉपर समझना है, क्योंकि ये बार बार न्यूमेरिकल में आएगा और बार बार आपको ये करना पड़ेगा. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड
how to calculate the calcium carbonate equivalent. Now there are two methods. One is called a molecular weight method and the another one is called an equivalent weight method. Equivalent weight method and molecular weight method will give you the same result. You can adopt any method. You can adopt any method. Okay, my voice is clear or not? My voice, is it Yes, sir. clear? Okay, fine. No more, disturbance. थोड़ा बहुत आएगा लेकिन ठीक है फिर भी I think it is okay, right? So कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट जो है वो आपको दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज योर मॉलिक्यूलर वेट मेथड एंड इक्विवेलेंट वेट मेथड. सो व्हाट इज दैट मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेथड, दैट कैसे हम इसको ये समझ सकते हैं. तो लेट्स लेट्स से इसको समझते हैं कि calcium carbonate equivalent basically it is you know the representing unit term of you this representing a unit of your yes. So let's say your calcium carbonate equivalent is calcium carbonate equivalent is equal to, it is, you know, you can see this even, it is an amount of hardness producing substance which will be given in your ppm. It is called amount of hardness, amount of substance, substance into 100 क्या है आपका? It is a molecular weight of calcium carbonate divided by molecular weight of substance. ये आपका है molecular weight of, this is your method for the molecular weight. You can see here amount of hardness producing substance. मैंने substance लिख दिया है, जो भी आपको substance दिया गया है डेटा में, above divided by molecular weight of hardness producing substance into molecular weight of calcium carbonate. That means 100, right? और दूसरा मेथड जो है वो है आपका, it is calcium carbonate equivalent is equal to same method, same amount of substance into 100 divided by equivalent weight of substance. Sorry, this is wrong. This is your 50 because equivalent weight is 50. Equivalent weight of calcium carbonate, right? So this two formula can be used for the calculation of your calcium carbonate equivalent. Now the thing is कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हाईएस्ट जो भी सब्सटेंस है, मे बी 2-5% दूसरे सब्सटेंस है, लेकिन ओवरऑल सभी चीजों को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंसी पे हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंसी पे. मतलब कि अगर मेरे कंपाउंड, मेरे पानी में, इफ माय वाटर कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड, right? If my water contains calcium chloride, then calcium chloride is, say, for example, my water contains 50 ppm of calcium chloride, right? So that 50 ppm of calcium chloride is equivalent to how much calcium carbonate? That is your hardness. Remember, due to that calcium chloride, right? तो आपको ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी अच्छे से कि अगर मेरा
कोई चीज से एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कि मेरा 50 ppm का सोल्यूशन है कैल्शियम क्लोराइड का। 50 ppm कैल्शियम क्लोराइड है पानी में, राइट। तो इसकी हार्डनेस कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर 50 ppm तो दिया गया है यहाँ पर, तो वही तो हार्डनेस नहीं। इट इज एन अमाउंट डिजॉल्व, रिमेंबर, इट इज एन अमाउंट डिजॉल्व इन वाटर, इट इज नॉट हार्डनेस। हार्डनेस तो किस में जाएगी? ऑलवेज कैल्शियम कार्बोनेट में जाएगी भाई, राइट। सो 50 ppm कैल्शियम क्लोराइड डिजोल्व कर किया हुआ है मैंने पानी में, या तो है एक्चुअली अवेलेबल है वो पानी में, then that water contains how much hardness in terms of calcium carbonate equivalent, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखिए कि आपको जो डेटा दिया गया है वो हमेशा अमाउंट का डेटा दिया गया है, राइट। अमाउंट का डेटा जो है वो आपको दिया गया है और वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप टोटल कर सकते हो, ठीक है। जस्ट so now my amount has been given, it is not hardness। पीपीएम को देखते हैं ना बच्चे, तो क्या करते हैं, सर ये तो पीपीएम में दिया है तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मीन परमानेंट हार्डनेस, तो 50 पीपीएम परमानेंट हार्डनेस है। नो, अब मैं बताता हूँ कैलकुलेट करके कि जैसे आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मैं इसको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है 50, दिट इज इन ppm, right, into 100, that is a molecular weight of your calcium carbonate divided by molecular weight of substance, that is your calcium chloride। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 111, राइट। कैन एनीवन कैलकुलेट? मैंने पहले भी बोला है कि मेरे लेक्चर्स में हमेशा कैलकुलेटर लेके बैठना है। कितना आएगा कोई बता सकता है? 50 into 100 divided by 111, 45.04, ये 45.04, ये पीपीएम में आंसर आएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है आपका पीपीएम में, ये मॉलिक्यूलर वेट आपका दिया है ग्राम पर मोल, राइट, और ये भी मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में आएगा, ये ग्राम पर मोल कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट 45.04 ppm। This is your hardness equivalent to calcium carbonate। It means अगर मेरी हार्डनेस, सॉरी, if I am dissolving my calcium chloride salt as 50 ppm quantity in water, it will produce the hardness of 45.04 ppm equivalent to calcium carbonate। The reasons are already we have learned, right? अगली, okay, अगर सेम चीज मैं यू नो सेम चीज अगर मुझे करनी है, क्लियर, फिर से मतलब करना है, लेकिन मुझे अभी क्या करना है, मुझे करना है इक्विवेलेंट वेट मेथड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, आई एम कैलकुलेटिंग द सेम न्यूमेरिकल। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला वाज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और उसका क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू 50, 50 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो 50 मेरा अमाउंट दिया गया है ppm, इक्विवेलेंट वेट होता है 50 ग्राम पर मोल जो भी है आपका, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ calcium chloride is 111, so what will be the equivalent weight of calcium chloride?
55.5 exactly, right? So 50 divided by 55.5 into 50, आंसर क्या आएगा? अगेन 45.04। मैंने क्या बोला था? सेम आंसर आएगा। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड को चूज कर सकते हो। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड को चूज कर सकते हो। ठीक है। कुछ बच्चों को जिनको इक्विवेलेंट वेट का प्रॉब्लम आता है तो उनको थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट के बारे में 11 12 से पढ़ना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जनरली आपका इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, राइट? हाईएस्ट वैलेंसी जितनी होती है। चलिए मुझे एक कैलकुलेट करके दिखाइए कि अगर मैंने सॉल्ट लिया है Al2SO4 थ्राइस, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 342 ग्राम पर मोल, राइट? इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बता सकता है कोई? एन फैक्टर, करेक्ट करेक्ट, यस। इसका मुझे कोई बता सकता है? इसका मुझे कोई बता सकता है कि 57 113 और कोई आंसर है किसी के पास? 57, यस। 14, माय गॉड, 14 कहां से आ गया बच्चा? 114, यस, हो सकता है। नहीं हो सकता है बेटा, नहीं हो सकता है। क्यों? देखो बहुत सिंपल सी बात है इसमें कि एल इसमें +3 में है, ठीक है, और ऐसे दो एल है तो इंटू 2 करना पड़ेगा कि नहीं? तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट विल बी 342 डिवाइड बाय 6, दैट इज योर 57, राइट? समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो ये गलती नहीं करनी है, राइट? अगर आपको पूछा जाता है कि मैंने क्या बोला, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलावा भी यू नो हार्डनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं ये सारे सॉल्ट, Fe है, Al है, राइट? बट ये बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे, इसलिए इसको ज्यादा हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका, ये आपका हो गया कंपाउंड के हिसाब से, कोई बात नहीं। लेकिन मतलब अभी हमको ये चीज तो पता है कि हमारा जो ये है क्या, हार्डनेस, वो दो टाइप का है, तो टेम्पररी और परमानेंट, ये दोनों हार्डनेस को हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट दिया हुआ है तो हम उसको बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम का, इफ इट इज गिवन सल्फेट, इट इज गिवन क्लोराइड, ब्रोमाइड, राइट, और नाइट्रेट and so on, anything except the carbonate and bicarbonate, they are all permanent. But sometimes they will give you, what they will give you is the water contains, water contains, water contains 50 ppm calcium plus 2 ions, right? Then 40 ppm magnesium sulfate and 20 ppm कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपको यहाँ पर निकालना है टोटल हार्डनेस, जिसके लिए लगेगी आपको परमानेंट प्लस टेम्पररी, दोनों लगेगी आपको, राइट? कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए ये तीन दिए गए हैं, उसमें से ये तो मुझे पता चल जाता है कि ये मेरा परमानेंट हार्डनेस है, दिस इज माय परमानेंट, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट है। ओके,
ये मेरा मैग्नीशियम सल्फेट परमानेंट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है? टेम्पररी। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? तो ये ध्यान में रखिए कि whenever you are taking any ionic hardness जिसका कोई कंपाउंड नहीं दिया हुआ है, देयर इज नो कंपाउंड गिवन, जैसे कैल्शियम सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ऐसा कुछ नहीं दिया है, बट सिर्फ कैल्शियम आयन दिया गया है। इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर दैट ionic hardness will be always always permanent। परमानेंट हार्डनेस होती है हमेशा, ध्यान रखो ये चीज को। अगर जैसे आपको दिया है मैग्नीशियम +2 की वजह से हमारा हार्डनेस है, या कैल्शियम +2 की वजह से हमारा हार्डनेस है, या तो फिर मेरा एल्यूमिनियम +3 की वजह से मेरा हार्डनेस है, तो ये सारे किस्सों में remember that you have to take those ions as a hardness producing ion as permanent hardness। समझ में आ रहा है? ऑलवेज मैं अभी एक आपको बढ़िया सा एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है, वो भी कराऊंगा। तो ध्यान रखिए इसका कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बुक में दिए गए हैं, आपको जो बुक सब्सक्राइब की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है सॉरी। सो एंड ऑलरेडी इसका जो बहुत सारे गूगल पे भी मिल जाएंगे इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। जब तक बुक नहीं लाते गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द हार्डनेस, राइट। सो इन दिस केस रिमेंबर कि आपका यहाँ पर जो केस है वो आपको बहुत समझदारी से करना है। चलिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको किया जाए। चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल ये है कि आपको एक पानी का सैंपल दिया गया है, ठीक है। आपको पानी का सैंपल दिया गया है। वाटर सैंपल में आपको एक डेटा दिया गया है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका डेटा। डेटा ये है कि आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो 40.5 ppm डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वो आपका डिसॉल्व किया गया है 46.5 ppm। मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व किया गया है आपका 27.6 ppm। कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व किया गया है आपका 32.1 ppm। एंड कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व किया गया है आपका कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व किया गया है 22.45 ppm, राइट। तो आपको इसके अंदर में टोटल हार्डनेस निकालनी है। टोटल निकालनी है मतलब परमानेंट और टेम्परेरी दोनों आ जाएगा, तभी तो टोटल होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आपको इसको एलोकेशन करना है। ये कौन सी हार्डनेस है? टेम्पररी। ये भी टेम्पररी है। ये कौन सी हार्डनेस है? ये परमानेंट है। ये भी परमानेंट है। ये भी परमानेंट है बिकॉज कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, सल्फेट, मैग्नीशियम और वो, राइट। इसमें आपको एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये टेबल वाइज आप करोगे, बुक में भी दिया हुआ है ये, तो बहुत अच्छा रहेगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं इसको, एमएफ। एमएफ मतलब क्या? कुछ नहीं है, एक्चुअली वही चीज है। कौन सी चीज? जो चेंज नहीं होने वाली है, जैसे सर 100। यस। सर सर आपने उल्टा लिखा है वो। क्या कैल्शियम लिखा है? हाइड्रोजन कार्बोनेट वो परमानेंट होना चाहिए ना, पहले दो परमानेंट है फिर नीचे के तीन टेम्पररी है। बेटा आपने बराबर पढ़ा नहीं है फिर, इसका मतलब कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर ऑलवेज टेम्पररी हार्डनेस। सल्फेट,
और ये सारे जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सारे आपके परमानेंट हार्डनेस में आते हैं। ये रहा देखो, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? क्लोराइड, सल्फेट्स, और भी यहाँ पर एक दो आयंस दिए हैं, लेकिन देर आर क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट्स, ये सारे ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड ऑल हैवी मेटल। ठीक है। और टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? जनरली बाइकार्बोनेट्स की वजह से, क्योंकि कार्बोनेट जनरली सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए। समझ में आ रहा है? बट स्टिल अगर दिया है तो उसकी हार्डनेस आपकी उसी में ही लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया? गॉट इट? यस। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट है वो टेम्पररी है, ये परमानेंट है। अब ये सी अमाउंट्स आर गिवन, दे आर नॉट हार्डनेस। बच्चा लोग समझ लो इसको अच्छे से, ये हार्डनेस नहीं है, इट इज अमाउंट। अच्छा, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मैं बात कर रहा हूँ वो क्या हो सकता है इसमें से? तो मेरा मॉलिक्यूलर वेट ये चेंज नहीं हो सकता है, राइट, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मेरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस वट एवर इट इज गिवन, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कॉमन बन गया। तो चेंज वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है? सब्सटेंस की। कोई पानी में कैल्शियम क्लोराइड 50 ppm है, किसी में 100 ppm है। सो माय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल बी ऑलवेज द कांस्टेंट थिंग्स। तो मेरा इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 162, दैट इज योर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या आएगा? 100 कॉमन रहेगा, डिवाइड बाय 146। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या आएगा? तो 100 डिवाइड बाय 120। कैल्शियम सल्फेट का क्या आएगा? 100 डिवाइड बाय 136। आई होप ऑल ऑफ यू नो द method of calculation of molecular weight, right? And then 100 by 111 जस्ट हमने किया। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन गया। ओके। अब मुझे क्या करना है? सिंपल, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू अमाउंट, दिस इज योर अमाउंट गिवन। हमेशा ये टेबुलर फॉर्म में करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑलवेज रिमेंबर, राइट? सो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है इसका? 100 अपॉन 162, एंड दैट इज 100 अपॉन 162 इंटू 40.5। 40.5। तो इसका आंसर कितना आएगा? कोई बताएगा मुझे? यस, 25, 25। करेक्ट। 25. Similarly, I will go with this 100 by 146 into 46.5। कितना आंसर आएगा मेरा? नेक्स्ट का आंसर कितना आएगा? 31.85, 84। ओके, ठीक है, 31.85। सिमिलरली तीसरा का आएगा 100 बाय 120, सॉरी, इंटू 27.6। इसका आंसर कितना आएगा मेरा? 23, correct. Then 100 by 136 into 32.1 कितना आएगा? अराउंड 23 के आसपास आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा आएगा 100 बाय 111 इंटू 22.45, so that will be 20 point, कितना आएगा? 20 point, yes, 20.22। ये मेरे सारी कैलकुलेशन। नाउ दीज आर द हार्डनेस, रिमेंबर, दीज आर द हार्डनेस। बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज नथिंग बट हार्डनेस। अब वेरी नाइस, डोंट डू दिस इन दिस समेशन and this 3 summation for permanent and these 2 summation for temporary, it is wrong, because ये तो अमाउंट डिसॉल्व किया गया है भाई।
आपको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालना है, एंड दैट यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉपरली, then only you will get the calcium carbonate equivalent terms. You can represent which that term in hardness. चलिए ठीक है, तो अब मेरा टेम्पररी हार्डनेस कितना आएगा ये बताइए। 25 प्लस 31.85, टेम्पररी हार्डनेस कितना हो जाएगा मेरा? 56.85 हो जाएगा। यस, पीपीएम याद रखो, हाँ? ये सारी जगह यहाँ पर आपको पीपीएम का यूनिट लिखना है। पीपीएम याद रखो। जब आप लोग इंजीनियर हो भाई, यूनिट के बिना तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग कभी भी, राइट? इंजीनियरिंग में यूनिट आपका कंपलसरी होता है। ओके, चलिए वेरी गुड। परमानेंट की बात कर लेते हैं। तो परमानेंट कितना आएगा मेरा? 23 प्लस 23 प्लस 20.22, it will be 66.22 ppm. वेरी गुड। नाउ टोटल हार्डनेस कितना आएगा? ये दोनों को मिला दो, खत्म। चलिए कितना आएगा टोटल? 123.07 ppm एग्जैक्टली। 07 आएगा या 67 आएगा, जो भी है वॉट, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत राउंड ऑफ फिगर में हो सकता है, ठीक है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं हम लोग, एक स्टेप आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट? एक स्टेप हम आगे इसलिए चलते हैं कि ये तो आपके सारे यूनिट्स पीपीएम में दे दिए। अब मैं क्वेश्चन में एक और चीज डालता हूँ। मैंने क्वेश्चन क्या किया था? अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सो कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड and convert those hardness into डिग्री फ्रेंच एज वेल एज डिग्री क्लास। तो चलिए डिग्री फ्रेंच में मैं कन्वर्ट करूंगा, तो मेरा ये टेम्पररी कितना हो जाएगा बताइए? डिग्री फ्रेंच में मेरा टेम्पररी कितना हो जाएगा? इट्स वेरी सिंपल। क्या आएगा? 5.685, करेक्ट, 110। 5.685 डिग्री फ्रेंच। ओके, ये कितना आएगा? 6.622 डिग्री फ्रेंच। और ये कितना आएगा? 12.307 डिग्री फ्रेंच। वेरी नाइस। चलिए अब मुझे क्लर्क का बताइए। क्लर्क का बताइए। क्लर्क में फर्स्ट कितना आएगा? 56.85 पीपीएम है, उसको क्लर्क में कन्वर्ट करना है। तो 56.85 into 70,000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? क्लर्क में 5.685 डिग्री फ्रेंच कितना हो जाएगा आपका? या तो 56.85 पीपीएम कितना हो जाएगा? 3.98 एग्जैक्टली, और 97 करेक्ट, ठीक है। 3.98 डिग्री क्लर्क, करेक्ट। चलो इसका कितना आएगा बताइए मुझे? यस, 6.622 कितना होगा बताइए? 4.6354, करेक्ट। 4.635 डिग्री क्लास। और ये कितना हो जाएगा? .86। ये कैसे हो सकता है? 8.6, हाँ 8.6 इज ओके। कुछ नहीं करना है, देखो इसको फ्रेंच में कन्वर्ट करना है ना, कुछ नहीं, इसको दोनों को कर दो, हो जाएगा कल क्लर्क को। सो इट इज अराउंड 8.6, करेक्ट, डिग्री क्लार्क, डिग्री क्लार्क। So this is a very simple method to calculate the things very easily.
कभी कभी आपको ऐसा बोलेंगे, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जरा मुझे आप बताइए। समटाइम्स दे विल गिव यू सम क्वेश्चन लाइक a water sample collected 10,000 liter water sample 10,000 liter water sample collected from Ganga river, राइट? एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ऐसा भी आ सकता है 10,000 लीटर वाटर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम गंगा रिवर एंड द डेटा ऑफ हार्डनेस, राइट, ऑफ और द डेटा ऑफ हार्डनेस इज गिवन एज बिलो। मतलब ये आपको डेटा दिया है। ये एक ही न्यूमेरिकल को मैं पूरा अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लो, ठीक है? देन कैलकुलेट द हार्डनेस और बाकी सारी चीजें सेम। मुझे ये बताइए कि 10,000 लीटर वाला जो फिगर है, 10,000 वाला जो फिगर है आपका, क्या आपको जो पानी दिया है उसका हार्डनेस कैलकुलेट करना है, ठीक है? सेम मेथड, खाली आपको एक वैल्यू और दे दिया 10,000 लीटर। तो मुझे ये बताइए कि ये 10,000 लीटर का वैल्यू का यूज कहाँ आएगा? शुरुआत में आएगा, मिडल में आएगा, एंड में एंड में आएगा, सर। एंड में आएगा, या तो फिर नहीं आएगा? बताइए मुझे। और प्लीज डोंट राइट दिस मच, क्योंकि मैं पढ़ने में चला जाता है वो टाइम मेरा, तो इट्स बेटर टू टॉक। मेरा क्वेश्चन समझ लीजिए। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है कि मैं 10,000 लीटर जो वाटर सैंपल लाया हूँ गंगा का, जिसका डेटा दिया हुआ है सेम वे ऐसे ही, उसका टेम्पररी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करना है। तो ये डेटा यूज कहाँ करूंगा? टेल मी। यस, आदित्य बोल रहा है कि नहीं होगा सर। एंड अरे, आदित्य बोल रहा है एंड में, एक बंदे ने बोला, बच्चे ने बोला नहीं होगा, नहीं आएगा कहीं भी। यस, यस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। एंड में आएगा, दीपांशी बोल रही है यस, अर्चित बोल रहा है नहीं आएगा, एंड में आएगा, नहीं आएगा, यश बोल रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं एंड में आएगा। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू पीपल। आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा डेटा दिया है। क्यों? सोचो, मैंने आपको क्या पूछा है? हार्डनेस निकालने की पूछी है, ठीक है? अब हार्डनेस इज अ कंसंट्रेशन टर्म, रिमेंबर। और कंसंट्रेशन 1 ml में जितनी होती है वो ही कंसंट्रेशन आपकी 10,000 लीटर में भी होगी। याद करो पीपीएम का टर्म, 1 मिलीग्राम, फिर 10 मिलीग्राम, फिर 100 मिलीग्राम, फिर 1,000 मिलीग्राम, और हम साथ साथ में अपना एमएल बढ़ाते जा रहे थे लास्ट टाइम। याद आया? तो याद रखो कि ये 10 बच्चे क्या करते हैं, ये सारी चीजें निकाल दिया, यहाँ तक 8.6 और ये सारी चीजें निकाल दी, ठीक है? उन्होंने, उन लोगों ने सारी चीजें निकाल दी। अब क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे ये कर रहे हैं कि जो ये आपका कंसंट्रेशन 10,000 ml में आया, तो 1,000 ml में कितना या पर लीटर कितना? नहीं करना है बेटा, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो। वो वॉल्यूम आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसका रीजन मैं बताता हूँ। कंसंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे वो 1 ml हो, या 1,000 ml हो, या 10,000 ml हो। मैं इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, तो आपको एकदम इजी समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलिए समझिए। मैंने एक शरबत का ग्लास लिया, आई टेकन ग्लास ऑफ शरबत, राइट? और वो ग्लास में से मैंने एक चम्मच थोड़ा शरबत चखा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसमें नमक, चीनी, सब कुछ सही था, बढ़िया था एकदम, बहुत ही अच्छा था। लेकिन अगर मैं वो पूरा एक ग्लास शरबत पी जाऊंगा, तो वो ज्यादा मीठा हो जाएगा, ज्यादा नमकीन हो जाएगा, क्या होगा बताइए? इट इज सेम, करेक्ट। ये सारी, मतलब क्यों ऐसा है सेम रहेगा? क्योंकि
whatever the solutes are dissolved like lemon, sugar, salt, मसाला जो भी आपने डाला है, it is same throughout the volume. तो मैं 10,000 ml में कंसंट्रेशन ढूंढूं या मैं 1 ml में ढूंढूं या 1 लीटर में ढूंढूं, मेरा कंसंट्रेशन हमेशा सेम रहेगा. आई होप के एकदम क्लियर हो गया सबको. तो हमेशा याद रखिए कि ऐसी कोई भी फिगर दी है तो थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा आपको एग्जाम में. रिमेम्बर, ऐसे आंख बंद करके नहीं लगा देनी है वैल्यूज. ठीक है, हर एक वैल्यू कोई काम की नहीं होती है, वो आपको कैलकुलेशन में गुमराह करने के लिए भी दी होती है. सेम सिमिलरली मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन दिया है 100 ppm, इसका मैं क्या करूंगा बताइए. NaCl का कंसंट्रेशन भी दिया है कि ये पानी के सैंपल में ये सारी चीजें हैं, साथ में सोडियम को है. तो क्या करूंगा मैं उसका. यस यस, इट इज सूडो हार्डनेस. उसको कुछ करना ही नहीं, जस्ट आपको एक लाइन लिख देनी है नीचे, दैट NaCl concentration is not to be used because it is a pseudo hardness, so it will not impart the hardness like temporary or permanent hardness impart नहीं करता है. So we will not consider this in the calculation, right? Pseudo hardness not included, right? देखो इतना समझाया है ना, फिर भी एग्जाम में गलती करेंगे बच्चे. इतना समझाने के बाद भी बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में कि वो NaCl को भी डाल देते हैं, किस में, परमानेंट में या तो टेम्पररी में डाल देंगे और फिर टोटल हार्डनेस गलत कर देंगे. तो यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, टोटल हार्डनेस के मार्क्स कट जाएंगे, टेम्पररी में या परमानेंट में जिसमें भी आपने वो डाला है उसके मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक कि अगर सोडियम का कोई भी सॉल्ट है, इसमें भी सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, एनी डैम सॉल्ट of sodium and potassium not to be considered in the calculation of your hardness. न्यूमेरिकल समझ में आ गया पूरा एकदम अच्छे से, और कैलकुलेशन कैसे करना है एकदम क्लियर. अच्छा, यही चीज आप इसको, जैसे आपने यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिए हैं, तो आप यहाँ पर इसको इक्विवेलेंट वेट लेके भी कर सकते हो. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट लेके भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट ध्यान रखिएगा कि अगर आप सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ले रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको. आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का भी इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा. बस इतना दिमाग में रखना है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. आप दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं. यू कैन अडॉप्ट एनीथिंग, एनी मेथड आउट ऑफ दीज टू, right? You are free to adopt any method, but then you have to be very, very careful that whenever I am using molecular weight, I will use molecular weight of calcium carbonate as well as substance. And whenever I am using equivalent weight, I will use equivalent weight for both calcium carbonate as well as my substance, right? So, uh, आज का टॉपिक मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया, राइट. ये न्यूमेरिकल आपको एकदम समझ में आ गया पूरा अच्छे से. ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बुक में भी मिलेंगे, सो यू हैव टू प्रैक्टिस. देखो मैंने इस न्यूमेरिकल में सारी चीजें ले ली, मतलब अगर 10,000 ml दिया है, देखो, तो भी इफ वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिया है तो भी आपको समझना है कि वो वॉल्यूम को जरूरत नहीं, आपको तो कंसंट्रेशन पूछी हुई है, हार्डनेस. यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दैट ओनली, राइट. I hope you have enjoyed the lecture. You have learned the things properly. You have, अच्छे से दिमाग में बैठ गया. और आई होप कि 14 तारीख से आपकी एग्जाम्स हैं, क्लास टेस्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आएंगे. एंड मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के एक भी मार्क कहीं भी
मिस ना हो, एंड यू शुड गेट प्रॉपर मार्क, अच्छे से मार्क्स आपके आए, ठीक है। विद दैट नोट, पॉजिटिव नोट, लेट्स एंड विद दिस लेक्चर, बिकॉज आई होप कि तो आप लोगों का इसके बाद के भी लेक्चर होगा। सो अगेन वी विल मीट टुमारो इन द मॉर्निंग। हेलो सर। यस, बताइए। सर ये स्लाइड में आपने ये दूसरी कॉलम किसकी है, जरा एक मिनट बताइएगा। एक मिनट, कौन सी कॉलम बेटा? ये सेकंड वाली। अमाउंट। सेकेंड वाली अमाउंट है। इट इज एन अमाउंट गिवन, इट इज एन अमाउंट गिवन, राइट, जो आपको डेटा दिया गया होगा। ओके आपको जो डेटा दिया गया होगा वो पीपीएम या तो मिलीग्राम पर लीटर में दिया गया है, पीपीएम एंड मिलीग्राम पर लीटर इज सेम, राइट। ओके Okay, so this again, and this not to be considered, not to be considered. सर ये जो क्या सोडियम एंड पोटेशियम की जो सॉल्ट है जो आपने नहीं गिननी है, और कुछ हाँ, एक्सेप्शन में है क्या? जैसे केमिस्ट्री में होता ही है ना कुछ एक्सेप्शन, नहीं, इसमें कोई नहीं है बेटा। इसमें है इवन ना? एमोनियम दिया है ना तो भी नहीं गिनना है, ठीक है। एमोनियम दिया है तो भी नहीं गिनना है। एमोनियम, सोडियम और पोटेशियम, आप लोग प्रैक्टिकल करते थे तो लास्ट ग्रुप आता था, याद है? तो सोडियम, पोटेशियम और हाँ हाँ एमोनियम, हाँ हाँ वो सारे सॉल्ट हाँ। नहीं गिनने हैं जनरली, राइट। ओ, ओके देर इज सर, नो। ओके। ओके ओके, सर, चलिए थैंक यू सर, ठीक है। या, बाय। टेक केयर। Take care and thank you very much.